Hello my dear students, this is Sonia Kaushik, and as I promised you all that we will discuss chapter life process in today evening from our NCERT. So let's start this chapter from NCERT, and I will in this video I will tell you the important topics that are important for CBSE as well as for your chapter wise revision test. So let's start. लाइफ प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट, जितनी भी प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, दैट मे बी एनाबॉलिक, दैट मे बी कैटाबॉलिक रिएक्शंस, सो ऑल दैट टाइप ऑफ प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, excretion, transportation, whatever reactions are going on in living organisms, they are called life processes. All right. So we are coming to first topic, important topic of this chapter, that is nutrition. What is nutrition? As you all know that all living organisms require energy for its survival. Okay, and that energy they takes from food से लेते हैं. Different organism can use different types of food materials and enzymes are used to digest them. तो 1 marks के लिए आपको enzymes करना है. What are enzymes? Enzymes are biocatalyst that increases the rate of reaction, okay, without involving in it, and they are also called biocatalyst. Nutrition, it is basically a process of uptake of nutrients from the food substances. Various types of nutrients are there, like protein, vitamins, carbohydrates, fats, etc. All these are nutrients, and uptake of that nutrient by living organism is called nutrition. Now this nutrition may be autotrophic, in which the organism can prepare their own food. Organism अपना food खुद बनाता है, जैसे कि plants can prepare their own food with the help of photosynthesis. So that type of nutrition is called autotrophic nutrition, and the organism that have their own process to make their food, that type of organisms are called autotrophs. Alright, उनको autotrophs बोलते हैं, and you can write example, that is plants. Plants can make their food with the help of carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, that green pigment, and it forms glucose, oxygen as byproduct, and water molecule. This reaction is very very important for board point of view. This is reaction of photosynthesis. Okay. Now coming to the structure of stomata. This topic is important from this chapter. What are stomata? They are having a guard shaped cells, and if these guard cells are fully turgid, the stomatal pore will be open, and if guard cells are flaccid, the stomatal pore will be you can say closed. So what is stomata? Stomata are the tiny pores present on the lower surface of the leaves that helps in exchange of gases, and generally in case of dicots, the stomata are present on the lower side of the leaf, lower surface of the leaf, and in case of monocots, they may be present on both sides, on upper and lower surface. If we talk about the side cells, these are subsidiary cells, and that are surrounded by epidermal cells. Okay, so all these cells together, guard cell, epidermal cell, subsidiary cell, all these cells constitutes stomatal apparatus. तो आप उसको stomatal apparatus बोल सकते हैं. Okay, now coming to heterotrophic type of nutrition. My dear student, the organism which cannot prepare their own food, जो organism अपना food prepare नहीं कर सकते और दूसरे organism पे depend करते हैं, ऐसे nutrition को heterotrophic nutrition बोलते हैं, और ऐसे organism को heterotrophs बोलते हैं. heterotrophs जो अपना food खुद नहीं prepare कर सकते हैं. My dear students, heterotrophic nutrition may be of different type. They may be parasitic nutrition. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स देयर फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड दैट यूज द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड एंड शेल्टर. तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे. ठीक है. पैरासाइट 2 टाइप्स के हो सकते हैं. एक्टोपैरासाइट, अगर पैरासाइट ऑर्गेनिज्म की या होस्ट की बॉडी के बाहर है तो उसको एक्टोपैरासाइट कहेंगे, जैसे हेयर लाइस. एंड इफ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द host body, that are called endoparasite. Okay, like liver fluke or ठीक है, टीनिया सोलम you can say.
So this type of nutrition in which the organism depend on other organism for their food supply, that is called heterotropic nutrition. One more type of nutrition you can do, holozoic nutrition. It is a type of nutrition, students, in which whole food substance is taken in. Example, amoeba. अमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सीडोपोडिया बना लेता है फूड सब्सटेंस के चारों तरफ, एंड इट विल एनगल्फ द फूड. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. ऑलराइट, यू कैन सी दिस सीडोपोडिया. सीडोपोडिया को और क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फॉल्स फीट. फॉल्स फीट भी बोलते हैं. ठीक है, लोकोमोशन में भी यही हेल्प करते हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन. टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. चलिए, कमिंग टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स आपको एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम करना है और एंजाइम्स करने, डिफरेंट एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज माउथ, बक्कल कैविटी, दिस इज ईसोफेगस. ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, फूड पाइप. एंड द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस. ओके, ये कर लेंगे. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं, पेरिस्टालसिस भी बोल सकते हैं. पेरिस्टालसिस, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल. सो दिस इज फूड पाइप, दिस इज स्टमक, and then the stomach and leads to small intestine, and small intestine leads to large intestine. This part is caecum, colon and rectum. Coming to digestive gland, liver, this is the largest digestive gland. ये क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, सो दैट इज लिवर. इट सिक्रीट्स बाइल जूस. क्या सिक्रीट करता है लिवर, लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस. लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लिवर. सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, पेनक्रियास. ठीक है, बाइल जूस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, विच एंजाइम इज प्रेजेंट, नो एंजाइम. बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं है. कैसा होता है ये, एल्केलाइन इन नेचर. एल्केलाइन यानी कि बेसिक पीएच होता है, एल्केलाइन इन नेचर. ऑल राइट, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है. फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन इमल्सिफिकेशन, मतलब छोटी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना ताकि फैट इजीली एब्जॉर्ब हो सके. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स. माइक्रोविलाई होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन देयर दे हैव लैक्टील्स, तो लैक्टील्स इनका एब्जॉर्प्शन कर लेती है, फैट का एब्जॉर्प्शन. ऑलराइट, चलिए उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज गॉल ब्लैडर, इट स्टोर्ड बाइल जूस. ओके, लिवर सिक्रीट करता है और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर. ठीक है, चलिए बाद में बात करते हैं पेनक्रियास. सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये, और दिस इज बोथ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, इसलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं. और बेटा ये हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करता है, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, तो आपको पता है इंसुलिन क्या करता है, लोअर्स द ग्लूकोज लेवल. इंसुलिन कौन सी सेल सिक्रेट करती है, बीटा सेल. ग्लूकेगॉन कौन सिक्रेट करता है, अल्फा सेल्स. ठीक है, तो इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम है लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल. ग्लूकेगॉन इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर आप बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद मेन साइट ऑफ डाइजेशन, देखिए मैकेनिकल डाइजेशन, साइट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन इज स्टमक, क्योंकि यहाँ पे HCl भी प्रेजेंट है, दैट सॉफ्टन्स द फूड. साइट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन. और सारे डाइजेस्टिव जूसेस क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कहेंगे साइट ऑफ केमिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन जहाँ पे एंजाइम्स हेल्प करेंगे फूड डाइजेशन में.
ठीक है बेटा, चलिए. सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट alimentary canal. This appendix is vermiform appendix. It is regarded as vestigial organ, and research is going on that this may be a lymphoidal organ that helps in immunity. Okay, you can do one more topic here. In mouth we have a teeth that are four types of teeth. कौन कौन से हैं आप सभी को पता है? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर. ऑलराइट, 2 1 2 3 डेंटल फॉर्मूला है. दिस इज डेंटल फॉर्मूला. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर. और माउथ के अंदर स्टूडेंट सलाइवा प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा दैट हैव अ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज. दिस हेल्प्स इन 30% स्टार्च डाइजेशन. 30% स्टार्च डाइजेशन कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज. और बाकी 70% डाइजेशन कौन करता है? 70% डाइजेशन इज डन बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज. 70% स्टार्च डाइजेशन कौन करता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज.